है शतायु संघ और महिलाओं की सहभागिता। मैं सोचता हूँ विषय पुस्तक का जो विशेषकर कई भ्रांतियाँ जो अब तक फैलाई हुई है कि संघ के में महिलाओं को विशेष स्थान नहीं है, पर संघ की स्थापना 1925 में हुई। ये सवाल उस समय किसी ने खड़ा नहीं किया। उसके पहले ही राष्ट्र सेविका संघ की स्थापना 1936 में ही हमारी दीदी लक्ष्मी यादव ने शुरू कर दिया था। वो अपने आप में एक तरह से इसी तरह से शिक्षण दीक्षण का काम चल रहा था। और मैं सोचता हूँ कि हमारे समाज में, देश में और आज भी संघ में भी मातृशक्ति को जितना सम्मान दिया जाता है उसका शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हम क्योंकि माँ ही एक तरह से संपूर्ण राष्ट्र की निर्माण का आधारशिला है। बिना उसके संस्कारों के भारत की इतनी जो लंबी यात्रा गुजरी है और जो संघर्ष हुआ और जो बलिदान हुए हैं और जो समर्पण और चाहे आज़ादी का संघर्ष भी हुआ है, तो किसी न अगर बच्चे ने लड़ा है तो अपने माँ के संस्कारों से। तो वास्तव में संघ में भी और देश में भी और हमारे इतिहास में भी मातृशक्ति का सम्मान पहले भी था। जिस घर में माँ की पूजा होती है उस घर में भगवान अवतरित होता है। तो ये केवल कही हुई घटनाएं नहीं है, ये सत्य है जो हमने देखा है। राज्यपाल साहब, एक छात्रों का जो प्रोटेस्ट हुआ है उसको लेकर सियासत करवाती जा रही है। कल आपके निवास स्थान के बाहर भी कांग्रेस लीडर आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ आ सकते हैं, उनका अधिकार है। किस तरह से जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं आएंगे, उनकी बात सुनेंगे, जो हमसे हो सकता है हमारे पद की गरिमा को ध्यान में रखते जरूर करेंगे। और महिला सहभागिता, इस पुस्तक पर विस्तार से चर्चा हुई है और इसमें महिलाओं की सहभागिता के बारे में विस्तार से वक्ताओं ने बताया है। और वास्तविकता में संघ शतायु हुआ है और महिला सहभागिता जो एक नैरेटिव बनाया जाता है उसको तोड़ने का ये एक सफल प्रयास है। और मैं समझता हूँ बड़ी संख्या में महिलाओं ने यहाँ कार्यक्रम में भाग लिया है और जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं उससे महिला सशक्तिकरण की और जो है देश की ये जो हमारी एक संकल्प है प्रधानमंत्री जी का कि विकसित भारत 2047 अर्थात 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा, उसी परिकल्पना को, उसी सोच को, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए ये कार्यक्रम भी मील का पत्थर साबित होगा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਲੰਪੀਅਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸક્ષਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਹਦਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਮਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਟਰੂਲੀ ਆਨਰਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੱਲ ਕੁਛ ਹੋਏ, युवाओं ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ। ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 19 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਪਨ, ਬਟ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੀਇੰਗ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ने सानू दी कदर करनी चाहिए। थैंक यू। देखिए, मेरी पुस्तक का विषय है शतायु संघ और महिला सहभागिता। बहुत से लोग जो तरह तरह के अनर्गल प्रचार करते हैं, तो उसको रिफ्यूट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट के रूप में, एक दस्तावेज के रूप में मैंने ये पुस्तक लिखी है। महिला का सहभाग संघ के अंदर कैसा होता है, ये बहुत ही अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर ये पुस्तक आई है। बहुत ही इसके अंदर मैंने सरल तरीके से, ताकि जन जन तक पहुँचे। कई बार ऐसा कहा जाता है कि संघ में महिलाओं की भूमिका सीमित है, तो यहाँ पर मैंने ये प्रतिस्थापित करने की कोशिश की है कि संघ में महिला की भूमिका पहले भी प्रभावी थी, अब भी प्रभावी है, और संघ महिला को हमेशा से ही प्रेरणा शक्ति के रूप में, मातृशक्ति के रूप में, मातृभूमि के रूप में और जगन माता के रूप में देखता रहा है। क्या है शतायु संघ और महिलाओं की सहभागिता। मैं सोचता हूँ विषय पुस्तक का जो विशेषकर कई भ्रांतियाँ जो अब तक फैलाई हुई है कि संघ के में महिलाओं को विशेष स्थान नहीं है, पर संघ की स्थापना 1925 में हुई। ये सवाल उस समय किसी ने खड़ा नहीं किया। उसके पहले ही राष्ट्र सेविका संघ की स्थापना 1936 में ही हमारी दीदी लक्ष्मी यादव ने शुरू कर दिया था। वो अपने आप में एक तरह से इसी तरह से शिक्षण दीक्षण का काम चल रहा था। पर मैं सोचता हूँ कि हमारे समाज में, देश में और आज भी संघ में भी मातृशक्ति को जितना सम्मान दिया जाता है उसका शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हम क्योंकि माँ ही एक तरह से संपूर्ण राष्ट्र की निर्माण का आधारशिला है। बिना उसके संस्कारों के भारत की इतनी जो लंबी यात्रा गुजरी है और जो संघर्ष हुआ और जो बलिदान हुए हैं और जो समर्पण और चाहे आज़ादी का संघर्ष भी हुआ है, तो किसी न अगर बच्चे ने लड़ा है तो अपने माँ के संस्कारों से। तो वास्तव में संघ में भी और देश में भी और हमारे इतिहास में भी मातृशक्ति का सम्मान पहले भी था। जिस घर में माँ की पूजा होती है उस घर में भगवान अवतरित होता है। तो ये केवल कही हुई घटनाएं नहीं है, ये सत्य है जो हमने देखा है। राज्यपाल साहब, एक छात्रों का जो प्रोटेस्ट हुआ है उसको लेकर सियासत करवाती जा रही है। कल आपके निवास स्थान के बाहर भी कांग्रेस लीडर आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ आ सकते हैं, उनका अधिकार है। किस तरह से जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं आएंगे, उनकी बात सुनेंगे, जो हमसे हो सकता है हमारे पद की गरिमा को ध्यान में रखते जरूर करेंगे। और महिला सहभागिता, इस पुस्तक पर विस्तार से चर्चा हुई है और इसमें महिलाओं की सहभागिता के बारे में विस्तार से वक्ताओं ने बताया है। और वास्तविकता में संघ शतायु हुआ है और महिला सहभागिता जो एक नैरेटिव बनाया जाता है उसको तोड़ने का ये एक सफल प्रयास है। और मैं समझता हूँ बड़ी संख्या में महिलाओं ने यहाँ कार्यक्रम में भाग लिया है और जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं उससे महिला सशक्तिकरण की और जो है देश की ये जो हमारी एक संकल्प है प्रधानमंत्री जी का कि विकसित भारत 2047 अर्थात 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा, उसी परिकल्पना को, उसी सोच को, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए ये कार्यक्रम भी मील का पत्थर साबित होगा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਲੰਪੀਅਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸક્ષਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਹਦਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਮਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਟਰੂਲੀ ਆਨਰਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ। ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 19 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਪਨ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੀਇੰਗ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ कदर करनी चाहिए। थैंक यू। देखिए, मेरी पुस्तक का विषय है शतायु संघ और महिला सहभागिता। बहुत से लोग जो तरह तरह के अनर्गल प्रचार करते हैं, तो उसको रिफ्यूट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट के रूप में, एक दस्तावेज के रूप में मैंने ये पुस्तक लिखी है। महिला का सहभाग संघ के अंदर कैसा होता है, ये बहुत ही अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर ये पुस्तक आई है। बहुत ही इसके अंदर मैंने सरल तरीके से, ताकि जन जन तक पहुँचे। कई बार ऐसा कहा जाता है कि संघ में महिलाओं की भूमिका सीमित है, तो यहाँ पर मैंने ये प्रतिस्थापित करने की कोशिश की है कि संघ में महिला की भूमिका पहले भी प्रभावी थी, अब भी प्रभावी है, और संघ महिला को हमेशा से ही प्रेरणा शक्ति के रूप में, मातृशक्ति के रूप में, मातृभूमि के रूप में और जगन माता के रूप में देखता रहा है।